बट जस्ट कमिंग बैक, तो इसमें अब एक बात बताओ, तो किसी को अगर कैंसर है एंड ऑल्सो आयुर्वेदा कैन डेफिनेटली बी ऑफ हेल्प एंड दैट कैन क्योर कैंसर. लेट्स टॉक ऑफ समवन लाइक मी, like Mm. who doesn't have any diseases as of now. So but you still recommend that a person like me should also practice ayurveda because it's a Absolutely. preventive healthcare. तो 100%. अभी बात करते हैं, मेरे जैसे लोगों की बात करते हैं, तो what आर द डेली थिंग्स जो एकदम बेसिक से चीज़ें हमने हमारे डाइट में या तो हमने हमारे रूटीन में ऐड करनी चाहिए ताकि हमको भी आयुर्वेदा का बेनिफिट हो सके. सो आई एम वेकिंग अप लेट्स से एट 6 AM एंड स्लीपिंग एट 10 PM. ये मेरा दिन का पूरा साइकिल होता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि 6 बजे से 10 बजे, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक मील्स कौन से टाइम पे लेने चाहिए, क्या लेना चाहिए सुबह उठने के बाद, एंड ऑल, लाइक व्हाट शुड आई डू? Okay, इसको हम कहते हैं circadian rhythm. So, you know, Harvard, Stanford, all of them have done a lot of study, and all of them prescribe whole food plant-based diet, WFPB. Okay, whole food yani farm to table, plant-based yani everything is plant-based, no animal-based products, no meat, no seafood, no eggs, no dairy products. Okay, uh, Ayurveda also recommends the same thing as much as possible. Japanese culture also recommends the same thing. 95% plant slant. That's a secret for longevity. Circadian rhythm जो है, it is an English term. आयुर्वेद में उसको हम दोशा क्लॉक कहते हैं. Okay, it's basically eating based on the position of the sun. Okay, simple rule: rise with the sun, set with the sun. Okay, we are diurnal beings. We respond to the sun's rays. We respond to the moon. When the moon is up, it's time for us to rest. Do not eat. Do not fight. Do not be in flight. Rest and digest what has already happened in the morning. Right? During the day, when the sun is up, is a time when your metabolism is also awake. Metabolism yani aapka digestive fire and your ability to burn food as well as calories and fat. Right? Your digestive fire and your metabolic fire directly corresponds to the position of the sun. When the sun rises, your metabolic fire also starts rising. So in the morning, you start your day slowly. You don't wake up at 6 in the morning and go for the largest meal of the day, like a big, giant pizza and 2 burgers and 2, servings of French fries. You do not start your day like that. What would you start your day with? 200 ml of warm water. 200 ml is literally this much. Okay. Start your day with 200 ml of warm water. इसमें आप घी डाल सकते हो if you have constipation. इसमें आप नींबू डाल सकते हो अगर आपको वजन घटाने का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसमें नींबू डाल दीजिए. इसमें आप थोड़ी सी सिनेमन डाल सकते हैं. सिनेमन यानी दालचीनी, उसका पाउडर है. वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीवायरल है. वो आपके पेट के जात्रण अग्नि को जगाता है. The metabolic fire starts getting active. The digestive fire starts getting active. इसमें आप थोड़ा सा grated ginger डाल सकते हैं, अदरक. उससे भी आपका digestion improve होता है. अगर आपको digestion का problem है तो you will start off with lemon, cinnamon, grated ginger and stuff. अगर आपको बहुत ज़्यादा पित्त होता है सुबह उठते, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पित्त होता है, acids, तो आप इसमें 1 चम्मच सब्जा सीड्स डाल के 10 मिनट के लिए भी रख देंगे तो वो फूल जाएगा. तो आप सब्जा सीड पानी पी सकते हैं, ना कि चिया सीड, सब्जा सीड पानी. सब्जा सीड जो है आप फालूदा में डालते हैं. So it basically swells up when it's in water. It becomes like a jelly-like substance. Sabja seed can hold 20 times more water than its actual size. तो वो उतना पानी पकड़ के रखता है. And because it's treated like solid food in your body, it doesn't pass through like water. It stays in your stomach for a little longer. And it holds all that moisture in the stomach. तो आपके stomach acids को वो ठंडा करता है. अगर आपको पित्त है तो आप वो भी कर सकते हैं. फिर अब दूसरी चीज़ है, you can have a vegetable juice. Vegetables में कुछ वेजिटेबल्स को जूस कर सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को कभी जूस नहीं करना चाहिए. जैसे कि आप पेटे का जूस ले सकते हो, एशकार्ट कहते हैं उसको. एशकार्ट से आपका पेट में जो भी कचरा है, कब्ज है, वो सारा सिम्टम्स बाहर निकल जाता है. दूसरा है कैरेट, बीटरूट और आंवले का जूस, ना कि एप्पल. ओके, बिकॉज इन आयुर्वेदा वी डू नॉट मिक्स फ्रूट्स विद वेजिटेबल्स. कैरेट और बीटरूट जो है आपके लिवर को रीजनरेट करने में मदद करता है. लिवर आपका बॉडी का सबसे बड़ा डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, तो उसमें नए लिवर सेल्स पैदा होते हैं जब आप कैरेट बीटरूट जूस पीते हैं. अगर आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, हीमोग्लोबिन लो है आपका, आप अनीमिक है, आपके बाल बहुत गिर रहे, कैरेट बीटरूट का जूस ले लीजिए, उसमें आंवला डाल दीजिए. एक आंवला 20 नींबू का काम करता है. आपको 20 नींबू पीने की जरूरत नहीं है. एक आंवला में इतना विटामिन सी है कि आपको 5 ग्लास नींबू पानी पीने के बराबर है. So you get all that in one shot. One amla every day, Indian gooseberry. It has vitamin C, antioxidants. आपके body का oxidative stress को बाहर निकालता है. It also has the ability to fight cancer cells. Remember, you and I on a daily basis are fighting cancer cells in our body on a regular basis. पानी में शायद pollution हो गया होगा, contaminants आ गए होंगे, fluoride होगा शायद,
हवा में कोई पोल्यूटेंट्स है, शायद कंटेमिनेंट्स है, आपके ग्राउंड लेवल पोल्यूशन की वजह से आपकी सब्जियों में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी कोई कंटेमिनेशन हो सकता है। पूरा दिन हमारा शरीर कैंसर सेल्स और कंटेमिनेंट्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फाइट करता है। हमें सिर्फ उसको मदद करना है, हमें सिर्फ उसका क्या बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम बनाना है। सो यू कैन हैव कैरेट, बीटरूट, आंवला जूस। फिर इसके बाद अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बहुत ज़्यादा है, रिमेंबर 50% ऑफ द डिजीजेस हैपेंस ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। आपके ऑर्गन में अगर सूजन है, दैट्स नॉट गुड। आप सेलेरी जूस पी सकते हैं, उसमें क्यूकम्बर डाल सकते हैं अगर आपको बहुत कड़वा लगे वो, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है। आप सारी चीज़ों का फाइबर निकाल के सिर्फ जूस का सेवन करें। इसमें आप व्हीट ग्रास पाउडर डाल सकते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर द लिवर। मोरिंगा का पाउडर डाल सकते हैं, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। आपको आयरन डेफिशिएंसी कभी नहीं हो सकता इफ यू हैव मोरिंगा। फिर आप धनिया पत्ती का जूस ले सकते हैं। धनिया पत्ती आपके शरीर के हैवी मेटल्स को बाहर निकालता है। अगर आपके शरीर में हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो गया, वो ऑर्गन्स को डैमेज करता है, किडनी, लिवर, इन सब में से धनिया पत्ती जो है हैवी मेटल्स को निकालता है। इसीलिए इंडियन कल्चर में हर चीज़ में हम धनिया पत्ती का चटनी यूज़ करते हैं। शायद हम लंच करें या डिनर करें या सैंडविच खाएँ, कुछ भी खाएँ, हम हर जगह में 2 टीस्पून धनिया पत्ती चटनी रखते हैं, ओके? तो आप उसका जूस ले सकते हैं सुबह। फिर बनाना स्टेम जूस, उसको हम कहते हैं तमिल में वालतंड कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट इन मराठी एंड हिंदी, बट इट्स अ स्टेम ऑफ द बनाना प्लांट। वो इतना टाइट एंड फर्म है, it will give you the same appearance. It will also make you as slim as the stem of the banana plant. Have you seen the stem of the banana plant? It's only this thick. So it basically is very effective for removing kidney stones, gallbladder stones, fatty liver, any kinds of fibroids and cysts. And most importantly, it helps you lose weight. तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। किस चीज़ों का जूस नहीं करना चाहिए? स्पिनच एंड केल। कभी भी इसका कच्चा जूस नहीं लेना। किसका? स्पिनच और? स्पिनच एंड केल। Okay. स्पिनच और केल में ऑक्सलेट्स होते हैं। ऑक्सलेट जो है एक शार्प, रेजर शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनसाइड अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर व्हिच इज रेजर शार्प इनसाइड स्पिनच एंड केल। वो आपके बॉडी में जाके आपके बॉडी में जो कैल्शियम है उससे वो जुड़ के इट क्रिएट्स कैल्सिफिकेशन, किडनी स्टोन्स बनते हैं उससे, फिर वो किडनी से पास नहीं होता है, राइट? तो स्पिनच एंड केल है, उसका कच्चा जूस कभी भी नहीं लेना चाहिए आपको। स्पिनच और केल को हम हमेशा गर्म पानी में भिगो के अच्छे से उसको सॉटे करके, ब्लांच करके, फिर हम उसका सब्जी बनाते हैं। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.